Hello everyone, I'm Ambika Raina and I'm fortunate to say that I secured All India rank 164 in the UPSC Civil Services examination of 2022. And I'm here before you to share my journey, my preparation strategy and other learnings that I've had throughout this time. A little bit about myself. I'm an architect and I was working in Zurich, Switzerland when I decided to start preparing for this examination. So I think one of the most important questions that you have to ask is why you are preparing. Because the why of it is going to take you across in this ocean of UPSC. UPSC is a long journey. It's a very tough journey. And you need such anchors to pull you through. Because you will face difficulties, you will face obstacles, and you might face failures. But in that time, if you can remind yourself the reasons why you started, I think that's the only thing that will keep you going. Because personally also, this was my third attempt. The first 2 times, I was not able to qualify for the personality test. But the confidence, or I would say the courage to try once again, and once again, and once again, only comes from the belief that I want to reach somewhere in life and I have the motivation to push myself to get to where I know I deserve. So I was able to do that. And I think if you have the courage to start and you have the courage to keep going, one day you will also be able to make it. So I started preparing, but since my background is not based on humanities at all, I felt quite overwhelmed and lost in the beginning of my preparation. So I think in this video, I hope I'll be able to help those who have probably just begun their preparation or who don't come from this kind of academic background which helps in UPSC and who are feeling overwhelmed and lost, who don't know where to start, who think that this exam is unconquerable. It's not. You can very well do it because if I am standing here today, one day you might be able to stand here as well. So I'll tell you from scratch how I started. The first thing that I did before anything else was that I watched a lot of toppers talks. I must have watched almost 100 different videos of people talking about their strategies, about how they went about it, how they learned from their mistakes. Because if you have no background in this preparation, I think to understand what you're getting into is very important. And there's no shame in taking the wisdom and learnings from those who've come before you. If you are feeling lost, if you are feeling like you don't know what to do next, you should know that everyone who's come here before you, thousands and thousands of toppers who've come here before you, have also been in that same position. So learn from them, take their wisdom, and then you can start your journey with a little confidence and feeling that you're not alone in this. Then I think in my strategy, I would like to focus on a few points. First of all, it's my third attempt, and all 3 times I was able to clear the prelims. Secondly, in my mains, I was getting the same kind of marks the first 2 times, and this time I was able to make a jump of more than 100 marks. So these are the 2 areas which I will be focusing on in this video. So firstly, let's jump right into it. Prelims preparation. How do you do it? How do you go about it? I think there were some integral things that helped me clear it all 3 times, and that I would like to share with you. Firstly, limit your sources. This is a very basic funda which everybody talks about, but it's very difficult to live by it because content की कोई कमी नहीं है. मार्केट में आप जाओ तो आपको हजारों टॉपिक्स, हजारों सोर्सेस से मिल जाते हैं. तो कंटेंट की कमी नहीं होती तो खुद को रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. लगता है ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो. But that is a huge disservice to yourself. Because at the end of the day, you cannot recall anything that you've read just once. And what's important here is to clear the exam, not just gain knowledge. So if you don't have any tangible memory of specific facts, then there's no point in reading this and that and whatever.
So I think I followed very basic books, Lakshmikant for polity, Spectrum for modern history, NCERTs for geography, Mrunal for economy, Shankar for environment, and Nitin Singhania sir's book for art and culture. So these are very basic books. Even for current affairs, I followed Vision monthly compilations. So dynamic topics like international relations and science and tech were covered in that. But I would say that this is probably just 30% of your preparation, because आपने देखा ही होगा प्रीलिम्स का एग्जाम हर साल और ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है, तो बेसिक बुक्स फॉलो करके भी आप क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर पाएंगे अनलेस आप में वो स्किल्स हैं to answer the question. And skill development and becoming smart about your preparation only comes from solving mocks. So the next 70% of your preparation is just based on how many mocks you solve and how you analyze them to keep getting better and better at it. Improvement बहुत important है इसमें. मैंने जब पहला अपना मॉक दिया था तो आई barely scored around maybe 20-23 मार्क्स स्कोर किए थे मैंने, और बिल्कुल सिंपल मॉक टेस्ट था वो. मैंने सोचा था मैंने तो लक्ष्मीकांत पढ़ लिए कितनी बार, तो पॉलिटी में तो स्कोर आना चाहिए, बट काफ़ी डिसहार्टन हुई थी मैं वो देख के. But slowly, if you're improving in every single mock that you give and you're learning from your mistake and you keep training your mind कि हम क्यों कैसे सोचना चाहिए, क्या मैंने इसमें गलत किया, आप समझिए कि आपने वो आंसर जो लिखा है वो आपने क्या सोच के लिखा है और आप कहाँ उसमें गलत जा रहे हैं. अगर वो आप सीख लें तो आप अगली बार बेहतर ही कर पाएंगे, आप और बुरे नहीं होंगे उसमें. So mock tests, analysis, training your mind to be better every single time, that was the most key aspect of me being able to clear the prelims. After that, one more small step is there, which is like low hanging fruits होते हैं. अगर आप previous year's questions देखें यूपीएससी के, आपको एक पैटर्न समझ आना शुरू हो जाएगा कि कुछ कुछ टाइप के सवाल होते हैं जो यूपीएससी के थोड़े फेवरेट होते हैं. तो यू नो जैसे नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, रामसर साइट से आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, उसमें से उसके बारे में सब कुछ, उसमें से कौन सी नदी जाती है, वो कौन से वेस्टर्न घाट में, ईस्टर्न घाट में कौन से जानवर है उसमें, ये सारी छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जो बहुत बार आता है यूपीएससी में. सो यू नो नेशनल पार्क्स वगैरह हो गए, रिपोर्ट्स हो गई यूएन की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ट्राइब्स हो गई, पीवीटीजीज, उनके लैंग्वेजेस क्या हैं, उनके फेस्टिवल्स क्या हैं, और भी बहुत कुछ. हिस्ट्री से अशोका काफ़ी फेवरेट टॉपिक रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, एंड स्पेशली मैं कहूँगी अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं और आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो कोई भी पेचीदा नाम हो, जैसे अगर बोलबाचिया मेथड है या मियावाकी टेक्निक है, ऐसे कोई भी अलग से नाम वाली चीज़ों का आप ध्यान रखें, उनको मार्क करके रखें, बिकॉज आसानी से आपको 2 मार्क और मिल जाएंगे यूपीएससी में अगर आप ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं. सो आई थिंक प्रीलिम्स के लिए यही रहा मेरा. One is limit sources. Second is mocks, जो कि मैं बोलूँगी कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और सिर्फ देना ही नहीं पर उसका एनालिसिस, आप कहाँ गलत जा रहे हैं, आपकी एक्यूरेसी क्या आ रही है, आप देख पा रहे हैं कि आपके सब्जेक्ट्स कौन से वीक हैं. सो एक फीडबैक लूप टाइप्स बन जाता है आपका, आप देख पाएंगे कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं और आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो अगली बार आप बेहतर अटेम्प्ट कर पाएंगे. एनालिसिस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इम्प्रूवमेंट. एंड थर्ड होगा लो हैंगिंग फ्रूट्स. वो आप आइडेंटिफाई करें सिर्फ और सिर्फ PYQs से. सो अगर ये 3 चीजें आप सॉर्ट कर लें तो आपके चांसेस टू क्लियर प्रीलिम्स काफ़ी हाई हो जाते हैं, बिकॉज ये बहुत ही अनप्रडिक्टेबल एग्जाम है. और चाहे आप जितनी भी पढ़ाई कर लें, आई थिंक आप 10-20 सवाल से ज़्यादा सिर्फ नॉलेज बेस पे पास नहीं कर सकते हैं. आपको वो स्किल्स आने ज़रूरी हैं जिससे आप आंसर सही से दे पाएंगे. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज मेंस. मेंस में मेरा पहली 2 बार स्कोर 680 के आसपास रहा है. पहली बार 684 आया, दूसरी बार 680 आया.
तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था दैट मे बी दिस इज नॉट फॉर मी, मे बी आई एम नॉट मेड फॉर दिस, मैं कर नहीं पा रही हूँ, ये इतना ही मैं डिजर्व करती हूँ और इस लेवल पे मैं अटक चुकी हूँ. बट आई थिंक this exam needs a lot of humility, needs a lot of acceptance. It needs you to revisit where you're going wrong. It needs you to be open-minded. अगर आप आराम से खुद के साथ बैठें और ऑनेस्टी के साथ सोचें कि आपने क्या गलती करी है, बिना इस एग्जाम को ब्लेम किए कि ये तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, इससे तो कुछ नहीं किया जा सकता, ये सारी चीजें सोच के कोई फायदा नहीं है. आई थिंक आप सिर्फ अपने आप में चेंज ला सकते हैं. सो ये मैंने किया इस बार और कुछ टेक्निक्स फॉलो करी जिससे कि मैं 680 की रेंज से 792 पे पहुंची हूँ. ऑलमोस्ट 112 नंबर का जंप आया है इस बार मेरे स्कोर्स में. एंड मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये इम्प्रूवमेंट मैंने कैसे लाई और पिछली बार की क्या मिस्टेक से मैंने क्या सीखा है. सो आई थिंक सबसे पहली बात, ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि यूपीएससी बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल है, इसका तो कोई सिलेबस ही नहीं है, ये दे आस्क एनीथिंग अंडर द सन. एंड ये सोच के हम अपने आप को एक्सक्यूज कर लेते हैं टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ दिस एग्जामिनेशन. एंड मैं भी ऐसे ही कर रही थी पिछली 2 बार, बट इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज लाया उसमें. सब कहते हैं कि यू शुड अंडरस्टैंड द सिलेबस, you should read it properly and get to know it. सब कहते हैं कि आपको PYQs करने चाहिए वगैरह वगैरह, बट ये क्यों करने चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज यही 2 सोर्सेज हैं जिससे यूपीएससी आपको बहुत ही कीन इंसाइट देता है अपने वर्किंग में. यूपीएससी की तरफ से आपको इससे बेटर इंसाइट कुछ मिल नहीं सकती. सिलेबस वो बता देते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस वो बता देते हैं हमने क्या पूछे थे. तो इन 2 चीजों को लेके जो आप एनालाइज कर सकते हैं और एक फोकस्ड अप्रोच से अपने कंटेंट को रिफाइन कर सकते हैं, इससे बेटर कोई और सोर्स नहीं हो सकता है. सो दिस टाइम व्हाट आई डिड वाज, देयर लॉट्स ऑफ कोचिंग्स व्हिच टेक आउट दीज कंपाइलेशंस जिसमें ऊपर सिलेबस लिखा होता है, सिलेबस का एक टॉपिक लिखा है, उसके नीचे बहुत सारे PYQs हैं, उसके फिर एक टॉपिक लिखा है, उसके नीचे और PYQs हैं. तो ऐसे टाइप का मैंने प्रिंट आउट निकाल के रख दिया सारे GS पेपर्स के लिए. एंड हर समय प्रिपेयर करते हुए इसको रेफर किया ताकि आई डोंट गेट टू साइड ट्रैक्ड, I don't start preparing for something which is unnecessary, and I can focus on the things which are most important. And when you keep reading them and if you keep revisiting these, a pattern starts forming in your mind and you start training your brain to think like the examiner, to know what is important, what I should focus on, what is not important. Even आपको ये न्यूज़पेपर रीडिंग में बहुत काम आएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ते हुए इतना लंबा न्यूज़पेपर होता है, उसमें कितनी सारी टाइप्स की न्यूज़ आती हैं, बट कैसे उसको फिल्टर करना है एंड कैसे उस चीज़ पे ध्यान रखना है कि ये चीज़ है जो यूपीएससी को इंटरेस्ट करेगी और ये चीज़ है जिसको मुझे प्रिपेयर करना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से आएगा. सो ये चीज़ मैंने करी. सबसे पहली चीज़, syllabus and PYQs. ठीक है. फिर दूसरी चीज जो मैंने करी है, जो कि मैं कहती हूँ काफी इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए, वो थी टॉपर्स कॉपीज को रेफर करना. आप ये समझते हैं कि यूपीएससी आप दे रहे हैं, हम अपने आप के स्ट्रगल में काफी गुम हो जाते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि ये सेम स्ट्रगल बहुत लोग फेस कर चुके हैं आपसे पहले और कितने लोग सक्सेसफुल हुए हैं. तो उनसे सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्होंने कैसे ये फेस किया, उन्होंने क्या किया टू मूव फॉरवर्ड. एंड इफ यू वांट टू रीच वेयर समवन एल्स हैज रीच्ड, इट्स बेस्ट टू लर्न फ्रॉम देम. सो टॉपर्स कॉपीज को मैंने रेफर किया और सिर्फ पढ़ा नहीं, उनको पैसिवली नहीं पढ़ा कि मतलब देख लिया और सोचा कि वाह कितना अच्छा लिख रहे हैं वगैरह. उससे सीखना बहुत जरूरी है. तो मैं क्वेश्चन देखती थी और पहले मैं सोचती थी कि मैं कैसे इसको आंसर करूंगी अपने दिमाग में. जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ लिखें बैठ के, अपने दिमाग में एक आंसर टाइप्स फॉर्मुलेट कर सकते हैं जिससे आपको लगेगा अच्छा मुझे ये इंट्रोडक्शन होना चाहिए, इस तरह से मैं अप्रोच करूंगी बॉडी को, इस तरह से कंक्लूड करूंगी. एंड देन यू रीड हाउ द टॉपर हैज अप्रोच द पेपर. सो one thing that happens is sometimes
we don't realize that we are not addressing the demand of the question. To understand how to approach the question, वो question कुछ पूछ रहा है, आप कुछ समझ रहे हैं, कुछ और जवाब दे रहे हैं, तो marks आपके उसी हिसाब से आएंगे. But because these people have proof that they have secured ranks, and then definitely they understand how to answer the question, so you can learn from their writings. कैसे frame करना है answer, किस चीज पे focus करना चाहिए, इंट्रोड्यूस कैसे करना चाहिए उसको, कंक्लूड कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने टॉपर्स कॉपीज से डेफिनेटली पढ़ी थी. सो सेकेंड थिंग वाज टॉपर्स कॉपीज. एंड थर्ड थिंग आई वुड से इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ both answer writing and content enrichment. बिकॉज मैंने ये देखा अपना जब परफॉर्मेंस एनालाइज किया कि फर्स्ट टाइम जब मैं दे रही थी तो सब बोलते हैं आंसर राइटिंग करो, वही तरीका यूपीएससी क्लियर करने का. कंटेंट मेरे पास ज़्यादा था नहीं. 2020 में ही मैं ग्रेजुएट हुई थी और 2020 में ही मैं अटेम्प्ट दे रही थी. सो आई हैड अ ह्यूज लैक ऑफ कंटेंट. नॉलेज बेस वाज नॉट सो स्ट्रॉन्ग. तो आंसर राइटिंग कर करके कोई फ़ायदा नहीं अगर आप उसमें कुछ सब्सटेंस नहीं डाल रहे हैं. तो पहली बार मैंने बहुत सारी आंसर राइटिंग करी और मेरा नहीं हो पाया. दूसरी बार मैंने सोचा यार आंसर राइटिंग तो मैंने बहुत प्रैक्टिस कर ली है, इस बार मैं कंटेंट एनरिचमेंट करती हूँ. और ज़्यादा मॉक्स मैंने नहीं लगाए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी, पढ़ती गई ये सोचते हुए कि शायद इसी से मेरा पास होगा. बट वंस अगेन मार्क्स उतने के उतने रह गए. And even though I had the content, I didn't have the practice to put it on paper, because it doesn't matter आपके दिमाग में कितना है, आपका नॉलेज कितना है, आप कितने समझदार हो, अगर आप एग्जामिनर को वो नहीं दिखा पाते हो तो उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है. मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा आपकी लाइफ में होगा, ऑफ कोर्स कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा, आपकी नॉलेज बेस बढ़ेगी. बट अगर आपका एम है टू गेट मार्क्स एंड गेट अ रैंक, then there's no point in keeping it in your mind. You have to put it on the paper. So the third time, I decided that I have to put my feet in both these boats. I have to simultaneously practice answer writing and develop my content. So जैसे आपने statistics याद कर लिए, committee reports, कुछ basic frameworks बना लिया specific topics के ऊपर कि इसका ऐसे introduction होना चाहिए, ऐसे कंक्लूजन होना चाहिए, बॉडी ऐसी होनी चाहिए. तो उस हिसाब से ना आपका टाइम जो एग्जाम में होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है. तो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज आपकी मसल मेमोरी बन जाए कि भाई इस टॉपिक से ये सवाल आया है तो मैं इस ही स्टाइल में इसको लिखूंगा. नॉट सेइंग यू डोंट रीड द क्वेश्चन, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. बट सिमिलर टॉपिक्स विल हैव सिमिलर काइंड्स ऑफ कंटेंट दैट यू कैन पेपर इनटू इट, लाइक स्टैट्स हो गए, कुछ SDGs हो गए, वो सब चीजें. तो वो चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है to make your answer little bit better, take it one up the notch. So ये रहा मेरा मेंस का जर्नी. आई थिंक सब लोग ये कहते हैं कि कंसिस्टेंसी इज द की एंड यू कैन नॉट डू विदाउट इट एटसेट्रा. बट ये चीज़ इंटरनलाइज करना बहुत मुश्किल है. मैं भी ऐसा बिलीव करती थी काफ़ी बार कि शायद मैं एग्ज़ाम पास आने लगेगा तो जोश आ जाएगा और फटाफट हम उस टाइम बहुत सारी आंसर राइटिंग कर लेंगे और पास कर पाएंगे. बट UPSC इज़ अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट. UPSC demands that you walk slowly, steadily, but purposely towards the goal. Short bursts of energy cannot take you past this examination. What is important is that आप कल से बेहतर बनाए अपने आप को. आपका गोल बस इतना होना चाहिए कि मैं जितना कल कर पा रहा था या कर पा रही थी या मैं जैसी कल थी आज मैं उससे बेहतर हूँ. तो स्लोली जब आप ऐसे सोच के आगे बढ़ेंगे और रोज थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा that when you look back and see where you started, you would have come so far. And that is what is most important in this paper. There's nothing else that's more important than improvement. So that was the most important thing I think I learned during my journey. Then the last stage of this examination is the interview stage, the personality test, which I would say is the most fun and exciting part of this paper.
एंड मैं काफ़ी फॉर्चुनेट थी दैट दिस टाइम आई कुड रीच दैट लेवल, एंड मैं बहुत एक्साइटेड होके गई थी वहाँ पे। आई थिंक ये एक मिथ है जो क्रिएट किया गया है कि पर्सनैलिटी टेस्ट, सिंस इट्स अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, यू डोंट हैव टू प्रिपेयर एनीथिंग फॉर इट, बिकॉज आप पर्सनैलिटी तो अपनी चेंज नहीं कर सकते। बट आई डोंट थिंक इट्स अबाउट लर्निंग टू चेंज योर पर्सनैलिटी। आप डेफिनेटली इस स्टेज के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज इट्स मोर अबाउट लर्निंग हाउ टू कंडक्ट योर सेल्फ and how to present yourself to the board members, and showing your best possible version, so that उनको भी लगे कि हाँ, हमारे सामने एक ऑफिसर बैठा है एंड इसको तो हमें फ्रेटर्निटी में लेना ही चाहिए। अगर आपको वैसी वाली फीलिंग इवोक करनी है तो आपको प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने बहुत प्रिपरेशन करी थी, एंड दिस टाइम आई स्कोर्ड 193 इन पीटी, और काफ़ी प्रिपेयर किया मैंने। ओपिनियंस काफ़ी अपने रिफाइन करे अबाउट वर्ल्ड इवेंट्स, अबाउट करंट इवेंट्स, सोचा उनको बैठ के। आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, इज़ टू इंट्रोस्पेक्ट एंड टू थिंक अबाउट थिंग्स फ्रॉम योर ओन पर्सपेक्टिव। एक बैलेंस्ड व्यू बनाना, एक स्टैंड लेना ऑन थिंग्स दैट यू बिलीव इन विल ओनली कम इफ यू हैव थॉट इट थ्रू। सो दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके अलावा डैफ के बारे में प्रिपेयर करना तो इम्पॉर्टेंट होता ही है। आपको अपने बैकग्राउंड के बारे में, जैसे आप हैं, आप क्यों हैं, आपने क्यों किया, कैसे किया, कब किया, वो सारी चीज़ों के बारे में क्लियर होना इज़ क्रूशियल फॉर दिस स्टेज। सो मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे there are a few elder people sitting in front of me and they want to know my opinions about different things. So that's quite exciting. I was very eager to share my opinions because I have a lot of opinions. So that was my journey in UPSC. And earlier मुझे ये एक misconception था, especially मेरे first attempt के time पे, कि जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं और बहुत अच्छी रैंक लाते हैं, वही ट्रूली विनर्स हैं और वही सक्सेसफुल हैं इस एग्जामिनेशन में। ऐसा मुझे लगता था, और मैं उन्हीं के ज़्यादा टॉपर स्टॉक्स देखती थी और काफ़ी इंस्पायर होती थी। बट स्लोली स्लोली इस जर्नी ने मुझे सिखाया है दैट इट टेक्स इमेंस स्ट्रेंथ टू पिक योर सेल्फ अप आफ्टर यू हैव फेल्ड इन योर वेंचर. And that is the courage that is needed to clear this examination. This is not to take away from the achievement of people who clear it in the first attempt, because उनकी preparation इतनी rigorous रही है और strategic रही है, उसके बिना तो exam clear हो नहीं सकता. But this is to tell you that if you don't find yourself among those who clear it in the first go, be kind to yourself. आप ये मत सोचिए कि आप life में fail हुए हैं. आप सोचिए कि इससे मैं क्या सीख सकता हूँ एंड मैं कैसे अपने आप को बेहतर बना सकता हूँ, और अगली बार मैं अपना सारा एफर्ट और सारा स्ट्रैटेजी लगा के कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, ये आपको माइंडसेट रखना है इफ यू वांट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन. बट एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि यूपीएससी सब कुछ नहीं है. यूपीएससी एग्जामिनेशन इज अ मीन्स टू एन एंड. That you want to make your life meaningful, you want to do work that is worthwhile, and you want to be successful in life. That is the end. To make an impact, to have a meaningful life. UPSC civil service exam is just a means to that end, and you should remember that this is not the end. And अगर आप इसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे. इस एग्जाम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपने बारे में, लाइफ के बारे में. वो लर्निंग्स आर इनवैल्यूएबल एंड नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, वट एवर यू डिसाइड टू डू, वेदर अटेम्प्ट इट, not attempt it, do something else in life. I hope you have a great life. Thank you.